So if everything is audible and visible, just confirm me once. Okay. And so welcome you all in the Budget OIS Institute. So this is our class of geography. This is the second class of geography. And yesterday we have talked about some of the basic concepts regarding the geography. ठीक है स्टार्ट किया था हमने and even I have given you the brief overall the orientation of the geography. So this will be going to our second class. So first of all, if you are comfortable and if it is okay, you can also turn on your cameras. ठीक है ना so you can so that I can see you too है ना थोड़ा सा अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है ऐसे कोई कोई लेट के ले रहा है क्लास में बैठ के ले रहा है तो इट्स जस्ट लाइक दैट so welcome you all Gunte Kamku Taso okay and Udiang so if you're comfortable just turn on your webcam please. You are joining ठीक है everyone just turn on your webcam it is mandatory everyone turn on your webcams ताकि पता चले सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं everyone Taso Eliza Kamku Gunte okay and all the other participants just turn on your webcam Emily Kamdir Eliza Crush ठीक है so basically in the yesterday's class I have given you the orientation ठीक है ना the orientation regarding the geography that what are the important chapters that are there and overall the weightage of all those chapters rest we have talked about some of the basic concepts regarding the earth overall earth car formation people are still joining be on time everyone be on time Menjo Menjo turn on your camera everyone turn on the cameras to enhance the accountability and interaction ठीक है ठीक है तो ये सारी चीज़ों के बारे में बात किया था सो एंड इवन आई हैव क्लासिफाई द होल सिलेबस इन द यस्टरडेज क्लास दैट बेसिकली इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी ट्राई टू बी ऑन टाइम एवरीवन ट्राई टू बी ऑन टाइम ठीक है ना मतलब विद इन 6 to मतलब विद इन 3 to 4 मिनट्स है ना 5 बज के 5-6 मिनट तक 5 मिनट तक 5 इज द मैक्सिमम रीच ठीक है ना उसके बाद विल नॉट वेट है ना तो बार बार आना पड़ता है डिस्टर्बेंस होता है क्लास में बट ठीक है कोई बात नहीं. So what I was saying, basically, we have talked about the geography or syllabus of the geography, and there I have discussed that the geography it is mainly the physical geography, and the Indian geography that we study in a separate part. It is nothing just the implementation part of the this physical geography. Indian geography जो है it is just the implementation part of the physical geography. What were the chapters? I have gone through those chapters है ना geomorphology, climatology, oceanography, biogeographies है ना और उसके बाद physical India में drainage system and I have also mentioned that we will definitely do this separating a separate mapping part which will be by and large है ना and it will cover all the other segment of the geography. ठीक है सब बात कर लिया था वेटेज के बारे में बात की yesterday I have given you the brief overall about the earth the position of the earth where is the earth and I have given you that there are some imaginary lines so basically I am giving you a brief sir is this the regular or the demo class basically it is both बस मतलब रेगुलर डेमो क्लास नहीं है रेगुलर ही आप इसको समझ लो ठीक है तो इट इज़ अ रेगुलर क्लास yesterday was our orientation class so I have given you the brief of regarding the syllabus overall the weightage pattern of the examination these things I have given you in yesterday's class आज की क्लास में क्या है ऑब्वियसली कल ही क्लास स्टार्ट हो गई थी कल ही क्लास स्टार्ट हो गई डेमो कुछ नहीं है ना सब बिल्कुल चल रहा है रेगुलर बेसिस पे ठीक है तो जो डेमो वाले बच्चे हैं वो भी क्लास ही देख रहे हैं ऐसे करके और जो एक्चुअल में हु हैव टेकन द एडमिशन और हु हैव जस्ट डेडिकेटेड कि नहीं यहीं से प्रिपेयर करना है बाजीराव इसमें फैकल्टीज बहुत अच्छे से पढ़ाती है और जो मेरे को पहले से भी जानते हैं ठीक है ना कि मैंने काफ़ी टाइम से यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ तो ओके अच्छा चलो कैमरे तो ऑन कर लो किसी ने भी कैमरे तक नहीं ऑन मतलब मैं ये ऑन करके बैठा हूँ यहाँ पे फिलहाल तो
ऑन कर लो। ये आपके लिए है। जब आप कैमरा ऑन करते हो तो आपकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है। हम्म। मेंजो, थैंक यू। आई थिंक मेंजो ने कल भी कैमरा ऑन किया था। थैंक यू मेंजो। शायद तो शायद तुम्हें देख के शायद बाकी लोग मोटिवेट होंगे। और ये होता है जब आप कैमरा ऑन करके बैठते हो ना, तो थोड़ी सी आपकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है ना, तब आप लेट के नहीं पढ़ सकते, है ना, ये होता है। ठीक है ना। और मैं भी आपको, हाँ मैं भी आपको फिर देख सकता हूँ कि क्या पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई थी। ठीक है ना। मैं जो अपने आप को जस्ट म्यूट यूर सेल्फ। ठीक है, अभी बच्चे आ रहे हैं। ट्राई टू बी ऑन टाइम एवरीवन, प्लीज़ ट्राई टू बी ऑन टाइम। 5:05 इज़ द मैक्सिमम रीच, 5:05 इज़ द मैक्सिमम रीच। ठीक है ना, वहीं तक आपको जुड़ना है। उसके बाद भी आ सकते हो बट थोड़ा सा लेट हो जाता है ना। सो व्हाट आई वाज सेइंग कि हु हैव टेकन ऑलरेडी द एडमिशन। ओहो, दे आर स्टिल कमिंग। ओके, ठीक है एमिली। ओके। सो व्हाट आई वाज सेइंग कि हु हैव ऑलरेडी टेकन द एडमिशन, तो उनके लिए हु हैव ऑलरेडी टेकन, लिसन मी केयरफुली, हु हैव ऑलरेडी टेकन द एडमिशन, फॉर देम दीज आर द रेगुलर क्लासेस। ठीक है ना। एंड हु हैव नॉट टेकन द एडमिशन फॉर दैट सेक, तो उनके लिए इट विल बी कंसिडर्ड एज द डेमो। पर ये क्लासेस चल रही हैं हमारी तरफ से। ठीक है ना। yesterday was our orientation class where I have given you overall brief, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है ना, कैसे मैं पढ़ाऊंगा, सारी चीज़ें मैंने बताया। मैपिंग भी मैं कराऊंगा, जो भी कोई नहीं कराता, विच इज़ वेरी एसेंशियल फ्रॉम दी परस्पेक्टिव ऑफ द ज्योग्राफी, तो उसको भी मैं कराऊंगा। तो और कल की क्लास में हमने क्या बात किया था, कल की क्लास में मैंने बात किया था ओवरऑल कि अर्थ जो है हमारा, तो ओवरऑल अर्थ में क्या होती है, कुछ इमेजिनरी लाइन्स हैं। ठीक है ना। सो बेसिकली दीज आर नाउ द एक्चुअल लाइन्स। इमेजिनरी लाइन्स का मतलब क्या होता है कि इफ़ वी वांट टू लोकेट अ पोजीशन, किसी पोजीशन को लोकेट करना, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ये पॉइंट बना दूँ, इस पॉइंट को मुझे लोकेट करना है ना, इस पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को, तो इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए मैं कैसे करूँगा, एक यहाँ से लाइन खींचूंगा, एक यहाँ से लाइन खींचूंगा। ओनली देन आई बी इन अ पोजीशन टू लोकेट दिस पॉइंट। सो दीज आर दी इमेजिनरी लाइन्स। तो जो लाइन ऐसे जाती है, ऐसे जो जाती है, यानी कि हॉरिजॉन्टल है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इज नोन एज दी लैटिट्यूड। और जो ऐसे है उसको बोल देते हैं लॉन्जिट्यूड्स। ठीक है ना। एवरीवन प्लीज बी ऑन टाइम एंड टर्न ऑन योर कैमरास टू। ठीक है ना, बी ऑन टाइम, 5:05 तक जुड़ जाए बच्चे। ठीक है। तो ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में बात कर चुके थे हम लोग, एंड वी हैव आल्सो टॉक्ड अबाउट बेसिकली तो मिड में लैटिट्यूड है, लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड, उसको हम लोग क्या बोल दिया, इक्वेटर बोल दिया। 0 डिग्री पे होती है। देन वी हैव ऑन द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, ऑन 23.5 वी हैव द कैंसर, और उसके साउथ में आ जाएगा हमारे पास कैप्रिकॉर्न। इंडिया कहाँ पर है, इंडिया का आधा पार्ट जो है, मीन्स द साउथ इंडिया पार्ट, इट्स देयर इन दी ट्रॉपिकल रीजन। 23.5 नॉर्थ और साउथ का क्या हम बोलते हैं, ट्रॉपिकल रीजन। दिस होल इज द ट्रॉपिकल रीजन। 23.5 नॉर्थ एंड साउथ इज द ट्रॉपिकल रीजन, दिस इज द ट्रॉपिकल रीजन। उसके बाद ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज द टेम्परेट रीजन, और ये ऑल्सो कॉल्ड इट एज द सब ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है ना, बताया था मैंने उस दिन, कल बताया था। और इसको आप टेम्परेट कह सकते हो, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज दी सब ट्रॉपिकल। ठीक है ना। जैसे अभी बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अभी बात करेंगे हम टेम्परेट साइक्लोन की। एक होता है साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर एग्जाम्पल, है ना, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस अ ट्रॉपिकल साइक्लोन। दूसरा होता है टेम्परेट साइक्लोन, टेम्परेट, और या उसका एक और नाम दे देते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है ना। तो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल मतलब ट्रॉपिक से बाहर आ गया। क्लियर हो गया, ट्रॉपिक, ट्रॉपिक यहाँ से बाहर आ गया टॉपिक से। उसी तरह यहाँ पे टेम्परेट या सब ट्रॉपिकल। ठीक। तो ये चीज़ें बात कर चुके थे, नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, दीज थिंग्स वी हैव टॉक्ड। उसके बाद सो इंडिया से कौन सी रेखा पास करती है, विच लाइन पासिस थ्रू इंडिया, इट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। वाई इन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू इंडिया, बिकॉज इन इंडिया पीपल ईट लॉट ऑफ गुटखा, है ना, विमल इलायची, जुबा केसरी। सो दैट्स वाई दिस कैंसर प्रोबेबिलिटी इज मोस्ट, ये मैक्सिमम कैंसर की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है ना। दिस वॉज द क्वेश्चन देयर, उसको आप कर लोगे। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बात कर चुके थे। ठीक है ना, दीज थिंग्स वी हैव टॉक्ड अबाउट। ठीक है ना। फिर आता है कि ओवरऑल ये पता होना चाहिए कि अब छोटे छोटे क्वेश्चन है, देखो जो स्टेट पीसीएस होता है या फिर कोई एग्जाम होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे पीजीटी का एग्जाम है, टीजीटी का एग्जाम है, उसमें थोड़ा बहुत सेगमेंट जीएस का आता है। तो इट इज़ नॉट ओरिएंटेड टुवर्ड्स द यूपीएससी, भले ही यूपीएससी का एक क्वेश्चन है। ठीक है ना, यूपीएससी का क्वेश्चन है, बट ओरिएंटेड टुवर्ड्स द यूपीएससी नहीं होता। मतलब क्या होता है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आर ओरिएंटेड टुवर्ड्स द स्टेट पीसीएस, या what it means कि ओरिएंटेड होते हैं टुवर्ड्स द स्टेट पीसीएस मीन्स द नेचर इज मोर ऑफ द फैक्चुअल टाइप। जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे जीएस में, मोस्टली उनका नेचर होगा फैक्चुअल टाइप या वन लाइनर टाइप। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने 3 लाइन बताई, ये 3 लाइन जा रही हैं, ये इक्वेटर हो गया। ठीक है ना, ये इक्वेटर हो गया, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, कैप्रिकॉन हो गया। ठीक है। अब पहला क्वेश्चन बन जाता है कि अगर बिकॉज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर
बिकॉज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू इंडिया, सो फ्रॉम हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस, दैट कुड बी अ क्वेश्चन. दूसरा, if the equator passes, which is very important line, so how many countries are there that are situated on the equator? ब्राज़ील है कि नहीं है, वेनेजुएला है कि नहीं है, इक्वाडोर है कि नहीं है, ठीक ना. सो दिस कुड बी अ क्वेश्चन. इस तरह के क्वेश्चन ओवरऑल बनेंगे. फिर अब बात करेंगे, विल टॉक अबाउट, अभी आगे बात करें इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में. तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितने स्टेट से होकर जाती है, इस तरह के क्वेश्चन वन है आपके यहाँ से बनेंगे ओवरऑल. जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द कंट्रीज थ्री फ्रॉम विच द इक्वेटर पासेस. द इक्वेटर है तो ये किन कंट्रीज से जाती है, इसका आंसर फाइंड आउट करना है, ठीक है ना. सो ओवरऑल देखो यहाँ पर ये इक्वेटर है हमारी, ठीक है ना. इक्वेटर कहाँ से जाती है, 0 डिग्री से जाती है इक्वेटर. सो नाउ वी कैन सी किन किन कंट्री से आती है. और ये ऐसा नहीं है कि यू कैन ऑल्सो मेक ए निमोनिक, ठीक है. डेफिनेटली यू कैन मेक ए निमोनिक और उसकी सहायता से आप उसको बता सकते हो. अदरवाइज जस्ट गो थ्रू दिस पिक्चर वन और टू टाइम्स, यू गोइंग टू हैव दिस थिंग, है ना. और उसके बाद जो बच्चे रेगुलर क्लास में हैं, तो जो भी आपका डेडिकेटेड ग्रुप होगा, आई लास्ट दिस सर एंड वी गोइंग टू शेयर दिस पीपीटी इन दैट ग्रुप ओनली. ठीक है. और भी इसके अलावा भी और भी काफ़ी सारे नोट्स मिलेंगे आपको, शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे, सारा कुछ मिलेगा यहाँ पे. तो फॉर एग्जाम्पल दीज आर द, फॉर साउथ ईस्ट एशिया में, इन द साउथ ईस्ट एशिया मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर द आइलैंड कंट्रीज, है ना. मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर द आइलैंड कंट्रीज. तो किरीबाती जैसे हो गया आइलैंड कंट्री हो गया, ये या इंडोनेशिया से पास करेगी, मालदीव से पास करेगी, ठीक है ना. केनिया से पास करेगी. मालदीव कहाँ पे है, मालदीव यहाँ पड़ती है. अभी देखा है रिसेंटली देयर वाज अ कैंपेन गोइंग आउट इन द मालदीव, इंडिया आउट कैंपेन, रिमेंबर. इन द मालदीव देयर इज अ कैंपेन गोइंग आउट, इंडिया आउट कैंपेन. मोस्टली मालदीव में क्या है, मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर ऑफ मुस्लिम और द इस्लामिक रिलीजन के एथनिसिटी है उनकी, तो बेसिकली. केनिया, है ना, केनिया और ये सोमालिया, है ना. सोमालिया, डू यू रिमेंबर, हैव यू सीन द मूवी पायरेट्स ऑफ कैरेबियन, पायरेट्स ऑफ कैरेबियन, जॉनी डेप, अम्बर हेड. अभी क्या हो गया बेसिकली, वहाँ पर जो कैरेबियन रीजन था, कैरेबियन कहाँ रीजन है, कैरेबियन यहाँ पे है, ये कैरेबियन है यहाँ पे, आपको कैरेबियन आइलैंड मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है. तो वहाँ पायरेट्स बहुत ज़्यादा थे. अभी पायरेट्स कहाँ के फेमस है, सोमालिया के पायरेट्स बहुत ज़्यादा फेमस है. एक मूवी भी आई थी कैप्टन कुछ करके, उसमें उसको शिप को लूट लेते हैं. तो सोमालिया के पायरेट्स बहुत ज़्यादा फेमस है. पायरेट्स क्या होते हैं, समुद्री लुटेरे जो होते हैं ना, समुद्री लुटेरे, उसको बोलते हैं पायरेट्स, ठीक है. तो युगांडा इज देयर, केनिया इज देयर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो डीआरसी इज देयर, युगांडा इज देयर, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज देयर. फिर उसके बाद साओ टोम एंड प्रिंसिपल गबन इज देयर, ब्राज़ील भी आता है, इक्वाडोर और कोलंबिया, मीन्स वेनेजुएला, दिस इज द वेनेजुएला. वेनेजुएला इज नॉट द पार्ट ऑफ द कंट्री फ्रॉम विच द इक्वेटर पासेस. सो दीज आर द कंट्रीज फ्रॉम विच द इक्वेटर पासेस. तो इस तरह की जो वन लाइनर इक्वेशन है ना, उसको आप ये नहीं कर सकते, स्किप नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल कि नहीं नहीं ठीक है कुछ और याद कर लेंगे, ये तो टफ है, नहीं. बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज वेरी नेसेसरी. these are the easy question and you cannot afford to avoid them. ठीक है, तो ये पता होना चाहिए ओवरऑल, ठीक है ना. विच आर द फॉलोइंग सिटीज इज द नियरेस्ट टू द इक्वेटर. इस कुछ क्वेश्चन है यहाँ, इसको अटेंड करोगे. नेक्स्ट ओवरऑल फिर से क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थ ना, अर्थ को काफ़ी लाइक विल क्लासीफाई इन लॉट ऑफ जोन्स. तो ओवरऑल अब क्या किया गया, ओवरऑल देखो किसने क्या किया गया. इक्वेटर था, ये पता था, नॉर्थ में कैंसर है, ये कैप्रिकॉन है, आर्कटिक सर्कल बताया था मैंने, नॉर्थ सब कुछ पता है हमें, वी नो इट वेरी वेल. अभी तक मैंने क्या बताया था, व्हाट आई टोल्ड यू, कि दिस होल रीजन मीन्स 23 ऑफ नॉर्थ, 23 एंड हाफ नॉर्थ एंड 23 एंड हाफ साउथ. दिस इज व्हाट आई वाज कॉलिंग एज द ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल एरिया, ठीक है ना, ट्रॉपिकल एरिया. कंफर्म. नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, तो दिस इज द ट्रॉपिकल जोन, देखो लिखा भी यहाँ पे, दिस इज द ट्रॉपिकल जोन एंड दिस इज द टेम्परेट जोन. कुछ नया नहीं यहाँ पे, ठीक है. जोन लिख दिया खाली वहाँ पर ना. एक ये पता होना चाहिए, वो ट्रॉपिकल जोन तो है, उसको लिख दिया. यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से जा रही है, तो इसको दिस इज ऑल्सो नोन एज दी टॉरेट जोन, टॉरेट जोन. सो द ट्रॉपिकल जोन इज ऑल्सो नोन एज द टॉरेट जोन. याद कैसे करोगे, हाउ यू विल रिमेंबर, इजी है. ट्रॉपिकल में क्या आ गया, ट्रॉपिकल में ध्यान से देखोगे तो क्या आ गया, ओ. ये सुनो, ट्रॉपिकल में क्या आ गया, ओ. और टॉरेट में भी क्या आ गया, ओ. तो टॉरेट मतलब ट्रॉपिकल, टेम्परेट अलग है, क्लियर. बी ऑन टाइम एवरीवन. ठीक है. सो द ट्रॉपिकल इज, एवरीवन टर्न ऑन योर कैमरास. आप लोग मतलब इंटरेस्टेड नहीं हो शायद, कोई बात नहीं, पर मैंडेटरी है भाई ये लिख, ठीक है ना. ट्रॉपिकल इज द, ट्रॉपिकल में क्या है, ओ है, और टॉरिड में भी क्या है, ओ है, ठीक है. तो हम ये समझ सकते हैं टॉरिड जोन इज द ट्रॉपिकल जोन, बस नहीं समझना है हमें. और ये देखो ऐसा क्यों है, देखो ये जो लाइनें हैं ट्रॉपिकल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, एक कर्व है, ऊपर जो लाइन है स्ट्रेट है, ऐसा क्यों. एक्चुअल में तो कर्व ही है ना लाइन, ये तो मुझे समझाने में बता दिया. जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम आपका मैप खोलते हैं, ये मैप जब खोलोगे आप ऐसे, तो एक्चुअल में कंट्री ऐसे थोड़ी ना है फ्लैट,
एक्चुअल में तो पूरा कर्व है ना हमारा अर्थ, है ना। द अर्थ इज ऑफ विच शेप? एनीवन? द अर्थ इज ऑफ विच शेप? बताया था कल? एनीवन? हम्म। द अर्थ इज ऑफ जियोइड शेप। तो ओवरऑल कैसा है, मतलब एग के शेप में है, ऊपर का सर्फेस थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ समझ गए। ओके, लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड्स पता है, ओवरऑल नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। उसके बाद देन विल टॉक अबाउट, अच्छा एक और चीज़ ये पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल जैसे, क्योंकि अर्थ में ऐसे जा रही हैं, मतलब ये अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें, ठीक है ना, तो यहाँ पे तो लॉन्गिट्यूड में लिखा हुआ है दे आर ऑल्सो नोन एज दी मेरिडियंस। तो लॉन्गिट्यूड्स को हम लोग मेरिडियन बोलते हैं, नॉर्थ टू साउथ जाते हैं, ठीक है ना। दे आर इक्वल इन लेंथ एंड इक्वेटर एट द राइट, क्रॉस द इक्वेटर राइट एंगल, ठीक है ना, फारदेस्ट अपार्ट फ्रॉम द इक्वेटर एंड कन्वर्जेस एट द पोल। इसका मतलब क्या हो गया, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है सिर्फ यहाँ से। व्हाट इट मीन्स, देखो ऑब्वियसली दीज आर आवर लॉन्गिट्यूड्स, तो लॉन्गिट्यूड्स कैसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ठीक है। वन लॉन्गिट्यूड इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक। दूसरा कहाँ से जा रहा है, दूसरा लेट्स से फॉर एग्जांपल ये दूसरा जा रहा है। नाउ व्हाट यू आर सेइंग कि दे आर मैक्सिमम अपार्ट एट दिस जंक्शन, मिड में क्या है, दे आर दी मैक्सिमम अपार्ट। सो वी कैन ड्रॉ अ कंक्लूजन, जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, अच्छा लॉन्गिट्यूड्स को भूलना मत, लॉन्गिट्यूड्स मतलब लॉन्ग, लॉन्गिट्यूड्स मतलब लॉन्ग, और लैटिट्यूड, लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स मतलब वो ऐसे जाएंगे, ऐसे 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 करके, ठीक है, मीन्स हॉरिजॉन्टल। और ये वाले वर्टिकल हैं, वर्टिकल जो होगा चीज़ वो लंबी होती है, ऐसे हम याद कर सकते, कुछ भी याद कर लो, ठीक है ना। सो व्हाट आई एम सेइंग कि जो लॉन्जिट्यूड्स होते हैं ना, तो वो मैक्सिमम मैक्सिमम अपार्ट होते हैं, मैक्सिमम दूर डिस्टेंस पे होते हैं, कहाँ पर, नियर दी इक्वेटर, इतना समझ जाओगे। और दे कन्वर्जेस एट द पोल्स, ये सुनो, दे कन्वर्जेस एट द पोल्स, दिस इज वन थिंग, द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन दी टू लैटिट्यूड्स इज नियर द इक्वेटर, सो दैट कुड बी अ कंक्लूजन। यही लिखा है यहाँ पे क्या, दे आर फारदेस्ट अपार्ट, दे आर फारदेस्ट अपार्ट एट द इक्वेटर, तो इक्वेटर में क्या होंगे, दे आर फारदेस्ट अपार्ट एंड कन्वर्जेस एट द पोल्स। क्लियर हो गया, ठीक है ना। एंड दे ऑल्सो डिटरमाइन द लोकल टाइम इन रिलेशन टू द ग्रीनविच मेरिडियन वर्ल्ड। ठीक है, तो इसका जो यूज़ होता है ना, जो लॉन्गिट्यूड्स का यूज़ होता है, वो यूज़ होता है ओवरऑल टाइम को डिटरमाइन करने में, टाइम को डिटरमाइन करने, और जो सारा टाइम होता है वो ग्रीनविच मेरिडियन से कैलकुलेट करते हैं। ग्रीनविच मेरिडियन के बारे में आएंगे, बात करेंगे, ठीक है ना। अभी बात करते हैं ग्रीनविच मेरिडियन का और टाइम कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखो होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक दिस मैप, लेट मी, ठीक है। तो हमने क्या किया, ओवरऑल हमने यहाँ से एक लाइन पास कर दी, यहाँ से एक लाइन पास कर दी, ठीक है ना। दीज ऑल आर व्हाट, लॉन्जिट्यूड्स, लॉन्जिट्यूड्स, ठीक। तो लॉन्जिट्यूड जो 0 डिग्री से गया, द लॉन्जिट्यूड विच पासेस फ्रॉम द 0 डिग्री, वी आर कॉलिंग इट एज द प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन। और ग्रीनविच बोल दिया हमने उसको, क्योंकि वो ग्रीनविच से पास करती है इसलिए प्राइम मेरिडियन बोल दिया। नाउ द कॉन्सेप्ट इज, जो टाइम का, जैसे इन्होंने क्या बोला यहाँ पे, व्हाट दे हैव सेड, they have said that they have said that longitude determines the local time in relation to the greenwich meridian of the world। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ दैट दिस इज द अर्थ, इफ दिस इज द अर्थ, तो ये दुनिया है, तो दुनिया में वी हैव द लॉन्जिट्यूड्स, तो लॉन्जिट्यूड्स ऑफ 0 डिग्री इज नोन एज द प्राइम मेरिडियन। क्लियर। एंड दे आर सेड, दे हैव सेड दैट लॉन्जिट्यूड डिटरमाइंस द टाइम ऑफ अ कंट्री। तो कैसे डिटरमाइन करेंगे, सो व्हाट वी हैव थॉट, व्हाट वी हैव गिवन, एवरीवन प्लीज बी ऑन टाइम। अभी भी देखो, आगे से देखो, आ जाओ भाई और आ जाओ, प्लीज बी ऑन टाइम। क्लास की टाइमिंग 5 से 6 है, तो मैक्सिमम 5 पे आप आ जाएं, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि लॉन्जिट्यूड टाइम डिटरमाइन कैसे की, तो व्हाट वी हैव थॉट, हमने क्या किया कि हमने कहा कि अगर कोई भी कंट्री, इफ देयर एनी कंट्री, इफ देयर एनी कंट्री विच इज देयर इन दिस डायरेक्शन, मीन्स ईस्ट में है, वो टाइम में आगे चलेंगे। ओहो, फिर आ रहे हैं कोई, एवरीवन प्लीज बी ऑन टाइम, गुड, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि जो भी कंट्रीज ईस्ट में है वो टाइम में आगे चलेंगे, और जो कंट्री यहाँ वेस्ट में है वो टाइम में
पीछे चलेंगे। क्यों चलेंगे, उसका रीज़न है। इसका देखो रीज़न क्या है। व्हाट इज़ दी इन द यस्टरडेज क्लास, नहीं कल की क्लास में नहीं नहीं सोलर सिस्टम नहीं पढ़ाया आपको, सोलर सिस्टम नहीं पढ़ाया। मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, जनरल क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ विद रिस्पेक्ट टू सन, मीन्स नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहाँ जाती है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, विद रिस्पेक्ट टू सन। सन कहाँ से राइज करता है, कहाँ सेट करता है? सन राइज इन द ईस्ट, ठीक है, सन राइज इन द ईस्ट सेट इन द वेस्ट। आप ये बोल रहे हो कि सन जो है वो राइज करता है ईस्ट में और सेट्स इन द वेस्ट, ठीक है। तो एक बचपन की पोएम भी है ना, सन राइज इन द ईस्ट सेट्स इन द वेस्ट, ठीक है। एक्चुअली और बाकी तो हिंदी में हमें पता ही है क्या, इन लेमैन लैंग्वेज यू नो कि सन कहीं कुछ राइज नहीं होता, एक्चुअल में अर्थ मूव करता है। एक्चुअली क्या होता है, अर्थ मूव करता है। तो कॉन्सेप्ट ये होता है बेसिकली, ये सन है हमारा, ठीक है, ये सन है हमारा, ये सन में से आ रहा है, ठीक है, दिस इज द सन, इज द सन, ठीक, ये हमारा सन है और ये हमारा है अर्थ, दिस इज अर्थ, ठीक। और ओवरऑल यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, लेट्स से ये नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ पे साउथ साउथ इंडिया हो गया, ये नॉर्थ वेस्ट हो गया, ऐसे करके सब बना हुआ है, ठीक है, ये इंडिया पूरा। अब सीन क्या बनता है कि बिकॉज द अर्थ, द सीन क्या बनता है, बिकॉज द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में टर्म्स में बोलोगे तो वो रोटेट करता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। द मोमेंट आई एम गोइंग टू टीच यू द सोलर सिस्टम, तो वहाँ पे ये चीज़ बताऊंगा आपको, यूवी याद रखना, यूवी, ये यूवी युवराज नहीं है, यूवी मतलब यूरेनस, ठीक है ना, यूरेनस एंड वीनस। सो ओनली दीज आर द टू प्लैनेट्स विच रोटेट क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब क्या हो गया, ईस्ट टू वेस्ट, क्लियर। सो दीज आर द ओनली टू प्लैनेट्स विच रोटेट क्लॉकवाइज, रेस्ट ऑफ द प्लैनेट रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, यानी वेस्ट टू ईस्ट, क्लियर हो गया इतना, ठीक है ना। अब क्योंकि बिकॉज द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, तो अगर if there's a point one and this is the point one, for example if I talk about which is the easternmost point of India, हाँ, काहो वैली, किबीतू, हाँ ठीक है, काहो वैली या किबीतू, तो किबीतू हो गया। और वेस्टर्न मोस्ट कौन है, कौन बताएगा, ये दूसरा कोई बताए, नॉट मेंजो, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट बताइए, हाँ, गुहार मोती, गुजरात के पास पड़ेगा। अब ये बताओ, क्योंकि जो हमारा जो अर्थ है वो मूव कहाँ से कर रहा है, मूव कर रहा है हमारा अर्थ, अर्थ इज मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो डेफिनेटली ये जो पार्ट होगा किबीथू का पार्ट जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, दिस विल बी फर्स्टली एक्सपोज टू द सन। ये क्या होगा, सन के, एवरीवन प्लीज बी ऑन टाइम भाई, बहुत डिस्टर्बेंस होता है ऐसे, 7:30 बज रहा है, मतलब 5:30 बज रहा है, भी आ रहा हो तो बी ऑन टाइम, ठीक है। सो डेफिनेटली दिस पार्ट विल बी एक्सपोज टू द सन, क्योंकि यही तो पहले मूव करेगा ना, डेफिनेटली। या ऐसे में देखो, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, कोई भी चीज़, जैसे अगर मेरे पास ये है फॉर एग्जांपल, ये कंपास है, दिख रहा होगा आपको, इसमें कंपास दिख रहा होगा। सो इफ आई मार्क दिस पॉइंट, दिस वन पॉइंट, ठीक है ना, और ये सन है, तो डेफिनेटली ये वाला दिस पार्ट विल बी फर्स्ट एक्सपोज टू द सन, और फिर ये मूव कर जाएगा, तो ये पार्ट बाद में आएगा। तो डेफिनेटली उसी तरह से जब हमारा अर्थ मूव करता है, व्हेन आवर अर्थ मूव्स, जब भी अर्थ मूव करेगा तो ये किबीथू वाला पार्ट जो होगा पहले एक्सपोज हो जाएगा सन को, फिर उसके बाद ये ऐसे मूव कर जाएगा नेक्स्ट, फिर गुहारमोती वाला पॉइंट बाद में एक्सपोज होगा। बात समझ रहे हैं, गुहारमोती वाला पार्ट क्या होगा, वो बाद में हमारा एक्सपोज होगा, ठीक है। मैं, हाँ ठीक है, गुहारमोती वाला पार्ट बाद में एक्सपोज होगा, क्लियर होगी बात, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर सुबह के, मतलब जो उजाला हो जाएगा, यानी कि लाइट आ जाएगी सुबह, लेट्स से 5 बजे सुबह लाइट आ जाएगी, पर यहाँ गुजरात में 5 बजे नहीं आएगी, वो 7 बजे आएगी, लगभग 2 घंटे का अंतर रहता है, नियर अबाउट 2 घंटे का अंतर रहता है। यानी कि अब ये तो हो गया, दिस इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अर्थ, सॉरी दिस इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडिया, ठीक। अगर हम अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में पूरा बात करें, तो डेफिनेटली जो कंट्री इस साइड में है, ईस्ट में है, तो उन कंट्रीज में क्या होगा, सवेरा पहले हो जाएगा, यानी कि वो टाइम में आगे चल रही होगी। तो सिंपल सी बात है, अगर अगर किबीथू में 5 बजे उजेला हो गया, ठीक, और यहाँ 7 बजे हो रहा है, तो ये 2 घंटे आगे चल रहा है ना, क्लियर हो गया, दिस इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया।
नाउ इसी को अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में जाओ, नाउ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अर्थ, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अर्थ, दिस ईस्टर्न पार्ट, क्योंकि ये समय में आगे चल रहा है, तो ये समय में आगे चलेगा और ये थोड़ा समय पीछे चलेगा। क्यों चल रहा है समय में आगे और पीछे? बिकॉज अगर यहाँ पर कहीं सन है और अर्थ रोटेट कर रहा है वेस्ट टू ईस्ट, तो दिस पार्ट यानी कि ये जो पार्ट है ईस्टर्न पार्ट, दिस पार्ट ऑफ द अर्थ विल बी एक्सपोज टू द सन फर्स्ट एंड देन दिस सेकंड पार्ट, लेटर पार्ट, वेस्ट वाला पार्ट जो होगा वो बाद में एक्सपोज्ड होगा। सो दिस इज द रीजन, दिस इज द मेन रीजन कि ओवरऑल जो भी कंट्रीज हमारे ईस्ट में हैं दे विल गेन द टाइम। और कैसे गेन करते हैं? जैसे अगर बात किया जाए ग्रीनविच मेरिडियन से इंडिया का यहाँ पर ना, अभी हमने बात किया कि हम पढ़ा क्या रहे हैं आपको, मैं पढ़ा आपको ये रहा हूँ कि लैटिट्यूड्स, सॉरी द लॉन्जिट्यूड्स डिटरमाइंस द टाइम। सो हाउ लॉन्जिट्यूड डिटरमाइंस द टाइम? एक लॉन्जिट्यूड है जो इंडिया से जाता है यहाँ पर, सो दिस वन लॉन्जिट्यूड विच इज पासेस थ्रू द इंडिया, है ना, 82.5 पे ऐसे करके जाता है वो, ठीक है, ये 0 डिग्री पे है, तो ऐसे जाएंगे आगे बढ़ेंगे तो 82.5 पे जाता है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस ओवरऑल कितना टाइम का ड्यूरेशन है? 5.5 घंटे का, 5.5 आवर का डिफरेंस है। जैसे फॉर एग्जाम्पल माई सम ऑफ द फैमिली माई सिस्टर लिव्स इन न्यूयॉर्क, ठीक, तो अब ओवरऑल ये 5 घंटे हो गए और यहाँ भी कुछ टाइम होगा, टाइम में पीछे जाएगा, ठीक, तो यहाँ पर जो है कुछ टाइम में पीछे जाएगा, क्योंकि तो ओवरऑल जो इंडिया का और न्यूयॉर्क का जो टाइमिंग होता है, न्यूयॉर्क कहाँ पे है, न्यूयॉर्क यहाँ नहीं पड़ेगा, तो ओवरऑल इंडिया और न्यूयॉर्क का टाइमिंग होता है वो करीबन 9.5 घंटे का होता है, 9.5 घंटे का। जैसे अभी हमारे यहाँ बजा हुआ है शाम के 5:30, ठीक है, तो न्यूयॉर्क का जो टाइम होगा अभी कितना चल रहा होगा? न्यूयॉर्क में करीबन अभी सुबह के 7 साढ़े 7 बजा होगा या 6:30 लगभग, मतलब सुबह होगी, काफ़ी अर्ली मॉर्निंग होगी अभी वहाँ पे, ठीक है ना। सो दिस इज करीबन 9-10 घंटे का पूरा ओवरऑल डिफरेंस होता है। तो हैव यू गॉट दिस आइडिया? किसी को दिक्कत तो नहीं इस आइडिया में कि कैसे टाइम हम कैलकुलेट कर रहे हैं? हुँ? और हर डिग्री जाने पर, जैसे यहाँ पे 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री से आगे बढ़ने पर ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इसी तरह तो है 82 डिग्री। तो हर डिग्री जाने पर 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट। कितना होता है? 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगर तो 15 डिग्री कितना हो गया? 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर, तो 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर। ये थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक छोटा सा कभी कभी न्यूमेरिकल भी आ जाता है टाइम कैलकुलेट करने के लिए, तो ये पता होना चाहिए। डू एनीवन हैज एनी कंफ्यूजन इन दिस? समझ में आएगा सबको? ठीक है। अगर आप बोल नहीं सकते, मतलब बोल इन द सेंस कि इफ यू डोंट वांट टू स्पीक ऑन माइक, सो यू कैन आल्सो गिव मी योर रिप्लाई और चैट इन द चैट सेक्शन, ठीक है ना। तो ये वेबकैम तो आपने ऑफ करके रखा है, कोई इशू नहीं इसका। ये आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो मैंने बताया कि 1 मिनट इज इक्वल टू 4 सेकंड, 4 मिनट, एक 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट, यानी कि 1 डिग्री ऐसे आप मूव करोगे, व्हेन यू मूव फ्रॉम हेयर टू हेयर, 0 to 1 डिग्री मूव करोगे, तो 4 मिनट आप आगे हो जाओगे, 4 मिनट आप आगे हो जाओगे। और ये होता कैसे? जैसे मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा कि अभी इंडिया में आज है 27 तारीख, 27 तारीख में हमारा जो टाइम अभी चल रहा है वो 5 साढ़े 5 के करीब चल रहा है। तो न्यूयॉर्क में क्योंकि ये 9-10 घंटे पीछे है, तो 27 तारीख यहाँ पर भी हो गई है आज न्यूयॉर्क में। पर ओवरऑल इनका मैं हमारे यहाँ शाम का चल रहा है ना, शाम का टाइम चल रहा है 5:30 बजे, पर यहाँ पर जो टाइम चल रहा है वो सुबह का है, अभी सुबह है, सुबह का अर्ली मॉर्निंग। एवरीवन, डू एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम इन दिस सेक्शन? अभी समझ लो, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन विल मूव फॉरवर्ड। एनीवन? समझ में आएगा सबको? अरे हाँ ना, कुछ तो बता दो। यस, मैंजो इज द ओनली पर्सन इज रिप्लाइंग, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पर क्या है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट, ये पता होना चाहिए आपको। जो जो एग्जाम में आना है ना वो मैं बता दूंगा आपको कि दिस इज समथिंग विच विल कम इन योर एग्जाम। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द पार्ट इज द थ्योरी पार्ट, है ना, वो तो होता ही है, सब्जेक्ट ही हमारा ऐसा है ना, थ्योरी ये सब्जेक्ट है। बट सम ऑफ द थिंग्स, सम फैक्चुअल थिंग अभी बच्चे आ रहे हैं। एवरीवन प्लीज बी ऑन टाइम, बी ऑन टाइम, ठीक है ना। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट, और इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, फोर को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 60 से, हाँ, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, ठीक है ना, तो 60 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 15। ये तो पता है ना, सिंपल सी मैथ्स है, सिंपल मैथ्स है ये। अगर इफ 1 मिनट इज इक्वल टू 1 मिनट इज इक्वल टू 4, 1 मिनट इज इक्वल टू 4, 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट, तो यहाँ 15 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 15 डिग्री इज इक्वल टू 15 × 60 मिनट, तो यानी कि इज इक्वल टू 1 आवर। तो 15 डिग्री अगर आप मूव कर गए, 15 डिग्री आप मूव करके लैटिट्यूड में, ठीक है, तो मीन्स आप 1 घंटे आगे बढ़ गए। हम कितना डिग्री दूर हैं? वी आर 82.5, है ना, अवे फ्रॉम दिस, ठीक है ना। तो ओवरऑल हम करीबन करीबन 5.5 घंटे आगे हैं, ठीक है, ओके। ऐसे भी समझ सकते हो, 15 छक्का 90 ना, 15 छक्का 90, 15 6 जा
90, तो वो 90 से थोड़ा कम ही है ना हमारा 82, तो वो 5.5 घंटे आता है नियर अबाउट। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? अर्थ रोटेट करता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो अर्थ रोटेट करता है फ्रॉम ओवरऑल, अर्थ रोटेट फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, तो पता है आपको वेस्ट टू ईस्ट कर रहा है, ठीक है ना। ओके, जैसे आप ईस्टवर्ड जाओगे, ईस्ट में जाओगे तो क्या होगा, टाइम में एडवांस हो जाओगे, आगे आ जाओगे टाइम में, ठीक है ना। लेकिन आप वेस्ट में जाओगे तो टाइम पीछे आ जाओगे। जैसे मैंने कहा कि अभी न्यूयॉर्क में दिन स्टार्ट नहीं हुआ है, दिन स्टार्ट होने वाला 27 का, पर हम 27 के दिन की खत्म पे आ गए। समवन वांट टू ज्वाइन, तो चला गया वो, कौन था ये, कोई बता। ठीक है, बी ऑन टाइम। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड टाइम एंड टाइम जोन्स, वही सारा ओवरऑल। तो हमने जिस तरह से ये जो ऐसे बना के खींचे हैं ना ओवरऑल, तो ये 24 है टोटल। अगर पूछा जाए आपसे कितने, हाउ 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 मेनी नंबर ऑफ दी लॉन्जिट्यूड्स आते हैं, तो टोटल कितने हो गए, टोटल हमारे 22 हो गए, 24 हो गए, इसीलिए 24 टाइम जोन्स हैं। ठीक है, 24 टाइम जोन्स हैं और ओवर 24 आवर में डिवाइड कर दिया उसको हमने इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड टाइम ऑब्जर्वेशन हो गया, जो बात कर चुके हैं हम लोग। ठीक है ना, और 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट, एंड सो 15 डिग्री 1 आवर इज इक्वल टू इक्वल वो हो जाएगा। ठीक है ना, ये पता होना चाहिए। यूएसएसआर में कितने टाइम जोन्स है, यूएसएसआर में वी हैव दी 11 टाइम जोन्स। ठीक है ना, और आई थिंक इफ आई टॉक अबाउट कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जोन किसके हैं, तो शायद फ्रांस के हैं वो, फ्रांस के कि यूके के हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जोन। हाउ, रशिया तो बड़ा है ना काफ़ी, रशिया इज बिग कंट्री, ठीक है, तो उसके नंबर ऑफ टाइम जोन 11 हैं, तो ज़्यादा होने चाहिए। बट आई थिंक ये फ्रांस के ज़्यादा है, क्योंकि उसके क्या है कि ओवरऑल जो ओवरसीज टेरिटरीज होती हैं, अगर उसको भी काउंट किया जाए, वहाँ से कौन कौन से लैटिट्यूड पास कर रहे हैं, देन इट विल बी मैक्सिमम। दिस इज रिगार्डिंग द आईएसटी। एंड देयर वाज आल्सो सम डिस्कशन गोइंग ऑन कि हम क्या करें ओवरऑल, हम 2 टाइम जोन कर दें इंडिया में। बट द इशू इज इफ वी मेक 2 टाइम जोन इन इंडिया, ठीक है ना, तो डेफिनेटली डे लाइट सेविंग तो होगी, बट कई सारे मैनेजमेंट में भी इशू होगा। फॉर एग्जाम्पल ये है, दिस इज द 80, दिस इज दी 82.5, तो दिस इज दी IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो ये यहाँ से हमारी जाती है, तो हम यहाँ पर जो है, और दिस इज द गुहार मोती, बिहार मोती, और यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, आपका कीवी 2, ठीक है ना, कीवी 2। तो ओवरऑल इन दोनों के बीच में नियर अबाउट कितना घंटे का अंतर रहता है, नियर अबाउट 2 से ढाई घंटे का इसमें अंतर रहता है। ठीक है ना, जैसे अगर यहाँ पर बात किया जाए, इसे मेजर नहीं किया गया है, कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है, 2 से ढाई घंटे का इसमें क्या रहता है, ओवरऑल अंतर रहता है, तो ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। तो ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ये प्राइम मेरिडियन से कितना है, प्राइम मेरिडियन से 5.5 घंटे आगे, तो लिखा हुआ है IST से, प्लीज एवरीवन बी ऑन टाइम। ठीक है ना, सो ये जो है आपका IST, सो IST जो है वो आपका ग्रीनविच यानी कि प्राइम मेरिडियन से 5.5 घंटे हमारा आगे है टाइम जोन। ठीक है, हम टाइम 5.5 घंटे आगे हैं। ठीक है ना, डे लाइट सेविंग क्या होता है ओवरऑल, डे लाइट सेविंग कॉन्सेप्ट वही, जैसे मोबाइल में भी डे लाइट सेविंग होती है। डे लाइट सेविंग क्या होती है ओवरऑल, आप क्या करो, अपनी जो ओवरऑल जो क्लॉक है ना, उसको तो समर में क्या करो, 1 घंटे आगे कर लो। ठीक है ना, समर में 1 घंटे आगे कर लो, विंटर में 1 घंटे पीछे कर लो, इस तरह से ओवरऑल आपने टाइम के हिसाब से अपनी चीज़ों को एडजस्ट कर लिया। फॉर एग्जाम्पल वही वाली बात कि अगर यहाँ पर यहाँ पर अभी सुबह 5 बजा है, ठीक है ना, 5 AM है यहाँ पे, और यहाँ पर है 7 AM, फॉर एग्जाम्पल। तो हम क्या करें, डे लाइट सेविंग में हम ये कर सकते हैं कि क्योंकि यहाँ 5 बज गया है और यहाँ पे सूरज आ गया है, यहाँ पे सन भगवान आ गए हैं, यानी कि सन यहाँ पे आ चुका है, यहाँ 7 बजे सन आएगा, तो ये लोग क्या करें, ओवरऑल ये लोग अपनी क्लॉक को आगे कर लें, तो ये अपनी क्लॉक में बजा लें 7 बजाए अभी, इस तरह से कुछ। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द डे लाइट सेविंग। ठीक है, ये इस तरह का क्वेश्चन है, आप इसको देख लेंगे। चाय बगान टाइम क्या था ओवरऑल, जो ब्रिटिशर्स जब ओवरऑल रूल कर रहे थे हमारे इंडिया में, सो दे हैव फेस्ड दिस इशू ऑफ द टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि कहीं 1.5-2 घंटे का टाइम का मैनेजमेंट का इशू होता था। आज तो नहीं होता, उस चीज़ उस टाइम पे होती थी। तो वो ओवरऑल क्या बोल रहे थे कि हम चाय बगान यानी कि आसाम के आसपास से 150 साल पहले हम वहाँ से एक टाइम जोन निकालेंगे। ऑब्जर्व द टी प्लांटर्स विच वॉज 1 आवर अहेड ऑफ द IST, जो टी प्लांटर्स थे आसाम के नियर अबाउट, वो 1 आवर अहेड थे ऑफ द IST, तो IST से 1 आवर अहेड थे। टी प्लांटर्स मतलब यहाँ पे ये, ठीक है, ये जो लाइन जा रही है यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, सिलीगुड़ी के आसपास, तो उसको हमने बोल दिया चाय बगान टाइम। अभी कोई उसका ज़्यादा खास इंपॉर्टेंस है नहीं, सो विल नॉट गो इन दैट। नेक्स्ट comes the concept of the international date line. Don't confuse the prime meridian जहाँ से हम 5.5 घंटे आगे हैं with the international date line. International date line it is entirely different thing। क्यों? इंटरनेशनल डेट लाइन मतलब कि देखो, अभी प्राइम मेरिडियन के केस में इफ यू आर गोइंग इन द ईस्ट डायरेक्शन,
टाइम बढ़ेगा आप टाइम में आगे चले जाओगे, अगर आप वेस्ट में जा रहे हो तो आप टाइम में पीछे जा रहे हो। सो दीज आर द टू टू थिंग्स इन द कॉन्सेप्ट ऑफ द इंटरनेशनल डेट लाइन, सॉरी इन द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, ठीक। और IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंटरनेशनल डेट लाइन में क्या है, देखो टाइम में थोड़ा बहुत आगे हो गए, 1 घंटे आगे हो गए, 1 घंटे पीछे हो गए, तो उतना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर डेट में ही पीछे आगे हो गया, सो दैट्स एन इशू। सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव ड्रॉ द इंटरनेशनल डेट लाइन। तो अगर कोई भी इंटरनेशनल डेट लाइन की इधर है और इधर है, तो उसका जो होगा उसकी डेट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। उसकी जो डेट हो जाएगी वो चेंज हो जाएगी। देखो यहाँ लिखा हुआ गोइंग इन द ईस्ट सब्ट्रैक्ट 1 डे। ईस्ट में अगर आप गए तो 1 दिन घटा दो। क्यों घटा दो, क्योंकि आप आगे बढ़ गए ना समय में। सिंपल सी बात है, अगर हमने क्या कहा, अगर यहाँ पे आज 27 तारीख है, 27 तारीख में 5:30 बजे, तो हमारा दिन तो खत्म हो गया। बट अगर आप न्यूयॉर्क में चले गए, फॉर एग्जाम्पल न्यूयॉर्क में चले गए आप, ठीक है, तो उस कंडीशन में हाँ ठीक है, न्यूयॉर्क में चले गए, मान लो उस कंडीशन में अभी आप सुबह बजाओ, सुबह 7 बजे मान लीजिए 27 का, तो आपके पास पूरा दिन है ना, अभी आपके पास पूरा दिन है। तो यानी कि अगर आप अभी आज के टाइम पे मैं यहाँ चले जाऊँ, इधर चले जाऊँ, ठीक है, न्यूयॉर्क चले जाऊँ, अगर मैं न्यूयॉर्क चला गया तो डेफिनेटली मेरे पास पूरा दिन है, तो मैंने क्या किया, ऐड हो गया मेरा एक दिन। पर मैं अगर इधर चला गया तो मेरा दिन सब्सट्रैक्ट हो गया। जैसे मान लीजिए यहाँ पर संडे है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मंडे, इस तरह से। क्लियर। तो ये IST की टाइप है। अब एक प्रश्न ये उठता है कि देन वाई IST ISD IDL, सॉरी IDL, दैट इंटरनेशनल डेट लाइन, वाई इट इज इन द zigzag मोशन, स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं है, जैसे प्राइम मेरिडियन थी स्ट्रेट लाइन, वाई इट इज नॉट द स्ट्रेट लाइन, वाई इट इज इन द zigzag मोशन। सो ये स्ट्रेट लाइन में इसलिए नहीं है बिकॉज देयर आर सम आइलैंड कंट्रीज ऑल्सो, आइलैंड कंट्री ऑल्सो। और हम ये नहीं चाहते थे कि एक कंट्री में दो दो डेट हो। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में 2 डेट चल रही है ना, मतलब मेन लैंड इंडिया की फॉर एग्जाम्पल आज 27 तारीख है, साउथ इंडिया में आज 26 तारीख है या 25 तारीख है, इस तरह से होता है। क्योंकि IST जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो आपके टाइम जोन से जा रही है या आपकी कॉन्टिनेंट से जा रही है, कंट्री से जा रही है। सो दिस इज एन इशू। तो हमने क्या किया, हमने बेसिकली इंटरनेशनल डेट लाइन को zigzag मोशन में लेके गए, ताकि किसी भी जो आइलैंड, जैसे ये देखो आइलैंड यहाँ पे पड़ रहे हैं, कुछ आइलैंड्स यहाँ पड़ रहे हैं, इन सी दीज आइलैंड्स, तो हमने क्या किया, इन आइलैंड के बाहर से लेके जाएंगे, ताकि इन सारे आइलैंड्स का टाइम जो है वो सेम रहे, जो जो डेट रहे वो सेम रहे। एवरीवन ट्राई टू बी ऑन टाइम। ठीक है, 5 बजे का टाइम है। क्लियर की बात, ठीक है। बाकी इंटरनेशनल डेट लाइन ना ओवरऑल 24 आवर जो है पूरा होल्ड में डिवाइडेड है, क्योंकि 24 टाइम जोन्स हैं, ठीक है, 180 मेरिडियंस हैं। कितनी मेरिडियंस है, 180। एक साइड में 90 होती है, दूसरी साइड में 90 होती हैं। वेस्ट में जब जाओगे आप तो ठीक है ना, तो आपका लॉस होगा 1 डे का, ईस्ट में गेन हो जाएगा। ठीक है, ये IST के बारे में। ठीक है, और IST बेसिकली कौन कौन सी कंट्री को नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, कौन कौन सी कंट्री को सेपरेट करती है, दिस इज नॉट दैट वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ टिल हियर इफ एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम just let me know, otherwise we'll move into the concept of the rotation and revolution. Anyone? कुछ पूछना है किसी को, डाउट है कोई? ठीक है, आगे बात करते हैं। तो अब 2 चीज़ें आती हैं, वन थिंग इज, गो अहेड सर, ठीक है, थैंक यू। वन थिंग इज द रोटेशन एंड सेकंड थिंग इज द रिवोल्यूशन। नाउ बाय द वेरी वर्ड इट इज क्लियर, कैन यू जस्ट मेजर द लेंथ ऑफ दीज टू वर्ड्स। सो ऑब्वियसली इसकी जो लेंथ है ये छोटी है, इसकी जो लेंथ है वो काफ़ी बड़ी है, तो यानी कि ये छोटा काम करेगा और ये बड़ा काम करेगा। इन क्वाइट सिंपल टर्म्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोटेशन? रोटेशन, दिस वर्ड इज मेड फ्रॉम द वर्ड रोटेट, and this is quite simple, है ना। rotate is quite simple word, ठीक है ना। now you can understand what is the meaning of rotate. for example वही वाली बात करती है, this is a paper weight, है ना, ये we are considering it as the earth, ठीक है ना। अब ये जो पेपर वेट है ये क्या कर रहा है, ये गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है। तो गोल गोल घूमने को तो इंग्लिश में क्या कहते हैं, रोटेट। ये सुनो, गोल गोल घूमने। अच्छा मुझे आप देख पा रहे हैं ना इसमें स्क्रीन में, मुझे भी मेरी स्क्रीन, मेरी फेस आ रहा है ना, हाँ ठीक है। तो ये जो आप गोल गोल देख रहे हैं, जब ये चीज़ अपने, ये पेपर वेट अपनी जगह पे घूम रहा है गोल गोल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रोटेट। तो अब अर्थ भी हमारा क्या है, ऑब्वियसली अर्थ इज ऑफ जियोइड शेप, तो ये हमारा जियोइड शेप हो गया। नाउ अर्थ ऑल, अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस। एक्सिस पता है ना, जहाँ पर आप खड़े हैं, जैसे वी इन केस ऑफ ह्यूमंस, और इन नॉर्मल केस वी टॉक अबाउट द एक्सिस ऑल्सो, एंड वी ऑल्सो टॉक अबाउट द सेंटर ऑफ मास, है ना। सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, ओवरऑल आपकी बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ है, इस तरह से हम बात करते हैं। सो इन टर्म्स ऑफ रोटेशन, so earth also rotate on its own axis, but there's one catch, what
नहीं कि अर्थ ऐसे है और ये ऐसे, इट इज नॉट लाइक दिस, दिस इज नॉट द एक्सिस ऑफ द अर्थ, द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज टिल्टेड, एंड टिल्टेड एट व्हाट एंगल? लुक, नेचर का सबसे फेवरेट एंगल पता है क्या है? द फेवरेट एंगल, द मोस्ट फेवरेट एंगल ऑफ द नेचर इज 23.5. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वॉज 23.5 नॉर्थ, कैप्रिकॉन वॉज 23.5 साउथ, ठीक है, और अर्थ इज ऑल्सो टिल्टेड ऑन 23.5 ऑफ डिग्री. सो अर्थ क्या है, अर्थ टिल्टेड है 23.5. तो अब अर्थ जो है रोटेट तो कर रहा है अपनी जगह पे, मूव तो कर रहा है, राउंड राउंड घूम तो रहा है, बट टिल्ट होकर घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, टिल्ट होकर घूम रहा है, ठीक है, टिल्ट होकर घूम रहा है. सो दिस इज है ना, सो दिस इज दी कंडीशन. तो ओवरऑल ये क्या है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, दिस इज नोन एज दी रोटेशन. व्हाट हैपेंस टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ? तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारा डे और नाइट होता है, डे और नाइट होता है. सिंपल सी बात है. इफ दिस इज, लेट्स से दिस इज अ पॉइंट 1, दिस इज अ पॉइंट 2, and if earth is rotating, for example, obviously earth is rotating in this direction, so if this is west, this is east, earth is rotating in this direction, यानी कि ये ऐसे मूव कर रहा है in this direction, clear? so sun, और यहाँ पर हमारा फॉर एग्जांपल यहाँ पर सन है, दिस इज द सन. so right now there's a day, there's a day, है ना, at the point 2 पे डे है, ठीक है, इसको डे कर देते हैं, ये डे आ गया यहाँ पे, ठीक. पर पॉइंट 1 पे क्या है, नाइट है, नाइट है. जब ये मूव करेगा फिर उसके बाद पॉइंट 1 में नाइट आएगा. तो डे और नाइट जो होता है हमारा, वो किस लिए होता है, बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ. और पता है, अगर अर्थ टिल्टेड नहीं होता, इफ अर्थ इज नॉट टिल्टेड, तो अर्थ टिल्टेड नहीं होता, तो अर्थ इज लाइक दैट, ठीक है ना, अर्थ ऐसे होता. फिर उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में ऑल द रेडिएशन, ऑल द इंसुलेशन ऑफ द अर्थ, सन, वो सिर्फ इसी पार्ट में एक्सपोज होता, यानी कि सिर्फ इसी पार्ट में रे पड़ती. पर क्योंकि अभी क्या है, अर्थ टिल्टेड है ना, तो ओवरऑल जो रे पड़ती है वो ऐसे रहती है, जैसे ये है, ठीक है. तो वो रे जो है वो पूरा ओवरऑल कभी ऊपर वाले एरिया में ज़्यादा पड़ती है, कभी नीचे वाले एरिया में ज़्यादा पड़ती है. इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, मैंने एक्सप्लेन दी दी इक्विनॉक्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, पेरिहीलियन एपीहिलियन इक्विनॉक्स, ठीक है ना, वहाँ पर जब एक्सप्लेन करेंगे तब ये चीज़ एक्सप्लेन होगी वहाँ पर, ठीक है ना. समर सोलिस्टाइज, विंटर सोलिस्टाइज, वहाँ पर क्लियर हो गया. तो एनीथिंग इफ इट इज रोटेटिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस, उसी को बोलते हैं रोटेशन. द रोटेशन दिस इज मेड फ्रॉम द वर्ड रोटेट, एंड अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस एट द 23.5 डिग्री टिल्टेड, ठीक है ना. एंड बिकॉज ऑफ दिस रोटेशन डे एंड नाइट हैपन. नेक्स्ट, revolution. Revolution, now what I told you is, in our solar system what happen is, that कुछ आइडिया होना चाहिए. फॉर एग्जांपल सम आइडिया, इन हेजी आइडिया, वी हैव अ गैलेक्सी. द नेम ऑफ द गैलेक्सी ऑफ इंडिया, नॉट इंडिया, हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, नेम ऑफ द गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है ना, सही बोल रहे हैं, मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे, आकाश गंगा. नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ द पड़ोसी का गैलेक्सी, नेबरिंग गैलेक्सी, हाँ ठीक है, एंड्रोमेडा, ठीक, एंड्रोमेडा, ये पड़ोसी गैलेक्सी होगी. अब ओवरऑल क्या है, ये हमारी मान लीजिए पूरी गैलेक्सी है, दिस इज योर होल गैलेक्सी. भाई बच्चे अभी भी आ रहे हैं. एनी मोडी, यू केम वेरी लेट, प्लीज ट्राई टू बी ऑन टाइम फ्रॉम टुमारो, ठीक है, टाइम इज 5 PM. सो ट्राई टू बी, एवरीवन ट्राई टू बी एट 5 5 5 तक आ जाएं आप, ठीक है ना, फिर क्या फ़ायदा कि क्लास तो खत्म ही नहीं वाली है, ठीक है. तो अब ये स्पाइरल गैलेक्सी है, तो यहाँ पर सन भी है, सन इज, है ना, सन इज ऑल्सो मूविंग, वो रोटेट कर रहा है प्रॉपर, ठीक है ना, तो सन रोटेट कर रहा है, वो सन है. उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर, ठीक है ना. उसके बाद हमारे पास प्लैनेट्स भी हैं, ठीक है, तो वी हैव द प्लैनेट 2, मैं बता क्या रहा था, अच्छा ठीक है. तो ओवरऑल क्या हो रहा है कि ये जो सारे प्लैनेट है, 1 2 3 4, दीज ऑल प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग, रिवॉल्व. अब रोटेट में नहीं कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, रिवॉल्व. रिवॉल्व का मतलब होता है घूमना, रोटेट का मतलब भी घूमना होता है, पर ये किसी के इर्द गिर्द घूमना, किसी के इर्द गिर्द घूमना, किसी, है ना. फॉर एग्जाम्पल, स्टॉक तो गंदा वर्ड हो जाएगा, स्टॉक तो हो जाएगा, पर घूमने के सेंस में ना, समझ लो. रोम, रोम यू कैन से, रोम, लॉइटर, है ना, ऐसे कर, स्ट्रॉल. तो ये रिवॉल्व कर रहे हैं. सो ऑल दीज प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन. सन के अराउंड क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं. और इसी को, इस पूरे प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया, रेवोल्यूशन. एंड रिवोल्यूशन, वन रिवोल्यूशन इज दैट ऑल्सो हिस्ट्रिकल रिवोल्यूशन ना, क्रांति, रिवोल्यूशन ऑफ 1857, ठीक है, वो रिवोल्यूशन भी होता है. नेक्स्ट, वन मोर थिंग, दिस इज रिवोल्यूशन, एंड सो ऑल दीज प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ठीक है.
one more thing is, in the case of earth, if this is earth, moon is also there, moon is also there, moon is also there. इतना बड़ा मून नहीं होगा, but ठीक है चलो, moon is also there, and moon is also revolving around the earth. Moon is also revolving around the earth. So if moon is revolving around the earth, so moon is the natural सैटेलाइट ऑफ अर्थ. अभी मैं बात करूंगा कि क्या होती है सैटेलाइट से, क्या होती है बात करेंगे, बट क्योंकि अभी थोड़ा सा टॉपिक आ गया, थोड़ा समझ लेंगे. सैटेलाइट जो होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैटेलाइट? सो एनीथिंग विच रोटेट, एनीथिंग विच रिवॉल्व्स अराउंड समथिंग, उसको बोलते हैं सैटेलाइट. किसी कोई भी चीज़ जो किसी के रिवॉल्व करती है, जैसे मान लीजिए कि ये हो गया, ये हमारा अर्थ है, और अर्थ के चारों ओर ये मून जो है, दिस इज द मून, दिस मून इज दिस मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ. So anything which revolves, ये revolve कर रहा है, anything which revolves is known as the satellite. ठीक. Now the satellite can be of two type. One could be natural, और दूसरा क्या हो सकता है, the artificial. कई सारे हम लोग क्या करते हैं, सैटेलाइट भेजते भी हैं for the transmission purposes, for capturing some images, to getting some data. So those are the artificial satellites. But moon is the natural satellite of earth. In the same manner, अभी हम बात करेंगे फोबोस एंड डेमिनोस, दीज आर द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द मार्स. गैनीमीड, गैनीमीड, ठीक है ना. तो इस तरह से सबके बारे में बात करेंगे, आगे बात करेंगे. तो ये दिस इज, है ना. और बिकॉज ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, what happens because of the rotation, what happens, day and night happen, and because of the revolution what happens, the seasons. तो ओवरऑल जो सीजनल चेंजेस होंगे, जो सीजनल चेंजेस होंगे, these seasonal changes will be because of the revolution. ठीक है. तो रेवोल्यूशन की वजह से क्या होंगे, रेवोल्यूशन की वजह से, बिकॉज ऑफ द रेवोल्यूशन सीजनल चेंजेस होंगे. बात करेंगे इक्विनॉक्स के बारे में, बात करेंगे, है ना, समर सोल्स्टाइस, विंटर सोल्स्टाइस, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे. तो ओवरऑल ये देखो, अर्थ जो है वो टिल्टेड है फ्रॉम इट्स एक्सेस. तो दिस शुड बी द केस, दिस शुड बी द केस, है ना, फॉर द रोटेशन ऑफ द अर्थ. बट अर्थ डोंट रोटेट लाइक दैट. अर्थ रोटेट करता है कैसे, टिल्ट है, टिल्ट है, टिल्ट है कितना, 23.5 पे. तो रोटेशन जो होगा, रोटेट. सो अर्थ इज डूइंग बोथ टू थिंग्स बेसिकली. फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज द सन, तो अर्थ क्या कर रहा है, और ये अर्थ है, तो ये अपनी जगह पे भी घूम रहा है. इट इज रोटेटिंग ऑन इट्स, रोटेट, आई एम यूजिंग द वर्ड रोटेट. So it is rotating on its own position also, and revolving around the sun also at the same time. Rotate and revolve, both the things the sun, the earth is doing simultaneously. Because of the rotation day and night happen, and because of the revolution the seasons happen. So ये क्या है, the rotation में अर्थ rotates on the tilted axis of the, है ना, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, 24 घंटे में एक चक्कर को पूरा करता है, पता है आपको. एंड बिकॉज ऑफ दिस द डे नाइट हैपन ड्यू टू द रोटेशन. नेक्स्ट आता है सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन. सो विच एवर पार्ट इज एक्सपोज्ड टू द सन, है ना, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है, तो उसको बोलते हैं सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन. तो ये दिस होल पार्ट इज सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन. बस इतना ही समझना है. रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ. ना अभी चलो यहाँ पे आ गया है, मैं बता देता हूँ. देयर आर टू वर्ड्स. वन थिंग इज द पेरिजी, पेरिजी. एक one thing is the apogee. So these are the two words. Now can you see this? Overall the length of these words are shorter than the length of these words. Yes or no? The length of the perigee and apogee is shorter than the perihelion and apohelion. बिल्कुल सही बात है. Now what it means? This is regarding the moon, and these two words are regarding the sun. So what Earth is doing? Earth is revolving around the sun, obviously. Now when the Earth is nearest to the sun, it is the perihelion. The position where the earth is nearest to the sun, it is perihelion, and the position where the earth is farthest from the sun, it is known as the एपिहीलियन. बिकॉज ये जो है ना पैराबोला में करता है, पैराबोला ऐसे करके वो पाथ रहता है उसका, उसमें वो मूव करता है. नेक्स्ट, हाउ यू विल गोइंग टू रिमेंबर दिस थिंग, पेरिहिलियन एंड एपिहीलियन. नाउ पी फॉर पास, पी फॉर पास, पास मतलब एग्जाम में पास नहीं, पास नज़दीक, नियर, ठीक है ना. पी का मतलब क्या हो गया, पी फॉर पास. और ए फॉर क्या होता है, एप्पल. ए फॉर एप्पल, एंड एप्पल इज वेरी कॉस्टली एवरी टाइम, बहुत कॉस्टली होता है एप्पल. तो एप्पल इज ऑलवेज बियॉन्ड आवर रीच, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज बियॉन्ड आवर रीच एप्पल. ठीक है ना, आम आदमी की जिंदगी में नहीं है एप्पल, ऐसे बात कर सकते. केला खाओ, ठीक, बनाना. तो ये हो गया एप्पल. तो ए फॉर एप्पल, तो एप्पल का मतलब क्या हो गया, फार, जो बहुत दूर है. और पी से मतलब हो गया पास. तो पेरिहिलियन मतलब द पोजीशन वेयर द सन एंड अर्थ आर क्लोजर और एट नियरेस्ट डिस्टेंस.
Aphelion is the where the position where the sun and earth are at the farther distance, and this is the same case with the moon. For example, if this is the earth और ये हो गया हमारा मून, तो एक मून हमारा यहाँ बना देते हैं, दिस मून, एंड वन मून इज देयर। ठीक, तो इन दीज टू केसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा पास है, इट इज़ वेरी नियर। सो इफ इट इज़ वेरी नियर तो इसको हमने क्या बोल दिया, पी से पास, पी से पास। तो दिस पार्ट इज नोन एज दी पेरिजी, और ये दूर है ना ये, तो इसको बोल देते हैं क्या, एपोजी। क्लियर हो गया, चार टर्म्स ही तैयार हो गया आपके, पेरिजी, एपोजी, पेरिहेलियन और एपोहिलियन। कभी नहीं भूलोगे, पेरिजी अपोजी, छोटा है ना, छोटा तो मून होता है, बड़ा होता है सन, तो सन के लिए पेरिहेलियन और एपोहिलियन। ठीक है ना, और ऐसे भी याद कर लो चाहो तो, इसमें एपिहीलियन में ओ लगा है, और नहीं सन में तो ओ नहीं आता, सन में ओ नहीं आता, रहने दो, वैसे याद कर लो। ठीक है ना, कितना टाइम लगता है ओवरऑल, और 365 डेज है ना, 1 ईयर लगता है ओवरऑल। रिवोल्यूशन कॉजेज द सीजन्स, रिवोल्यूशन की वजह से क्या होता है, सीजन्स होते हैं। ठीक है ना, ये है ओवरऑल ना। अच्छा, यहाँ से देख सकते हो, अभी टाइम तो कम बचा है, चलो इसको भी थोड़ा समझा देते हैं। ठीक है ना, ओवरऑल क्या होता है, अर्थ ऐसे मूव करता है अराउंड द सन, अर्थ ऐसे मूव करता है। अब देखो हम कहाँ पे हैं, देखो दिस इज द इक्वेटर, दिस इज द इक्वेटर, तो ये जो लाइन है ये इक्वेटर हो गई। हम कहाँ पे हैं, हम यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, ये इंडिया है। अब आज 21 June, दिस डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम ऑल्सो, प्लीज। वैसे हो नहीं पाएगा, 6 बजे से आपकी क्लास है। चलो थोड़ा जल्दी से बता देता हूँ, फिर उसके बाद रिवाइज कर देंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में रिवाइज कर देंगे। तो ये क्या है, ये दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये इंडिया है। 21 June को हमारे यहाँ क्या होती है, गर्मी होती है। क्यों, बिकॉज एट दिस टाइम द पार्ट विच इज एक्सपोज्ड टू द सन, इट इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, इट इज एक्सपोज्ड टू द सन। तो कोई भी चीज़ अगर ऐसे रखी है, सिंपल सी बात है, इफ कोई भी चीज़ ऐसे रखी है और मैं इसको ऐसे कर दूँ, ऐसे, तो डेफिनेटली ये वाला जो पार्ट होगा वो क्या होगा, एक्सपोज हो जाएगा सन के। ये सुनो, दिस पार्ट विल बी एक्सपोज टू द सन, सो इन दिस मैनर ओनली। अगर हमने इसको ऐसे रखा है तो ऑब्वियसली दिस पार्ट, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, वो एक्सपोज होगा सन के, साउथ हेमिस्फीयर ज़्यादा कम होगा। देखो ये इस नॉर्मल से, यानी कि इस प्राइम मेरिडियन से ज़्यादा पीछे चला गया, पर यहाँ पर तो यहाँ तक आ ही नहीं पाए, तो काफ़ी कम है। तो इसको बोलते हैं क्या, दिस इज नोन एज दी समर सोल्स्टिस। यहाँ पर हमारे गर्मी पड़ने लगी है। उसके बाद इसका ऑपोजिट आ जाओ, जब ये मूव, अर्थ मूव करके यहाँ से, इससे यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, इस टाइम पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखो कम लाइट पड़ रही है, कहाँ पड़ रही है, सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ रही है। तो यहाँ पर सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रही है, ठंड हो रही है, और हमारे यहाँ तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रही है, गर्मी हो रही है, और हमारे यहाँ ठंड हो रही है। तो इसको हमने बोल देते हैं विंटर सोल्स्टिस। तो ये वाला क्या, दिस इज द समर सोल्स्टिस, विंटर सोल्स्टिस। फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू व्हिच इज इंपॉर्टेंट, दीज डेट्स आर इंपॉर्टेंट, 21 June एंड दिसंबर, 22 December। ठीक है ना, so 21 June summer solstice. Now summer and winter, we are calculating this, we are saying it as a summer solstice and winter solstice in the context of India only ना, कि इंडिया के लिए तो समर है ना, और विंटर किसके लिए, विंटर भी इंडिया के लिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। गेटिंग अ पॉइंट, अदरवाइज देखोगे तो ये तो विंटर भी है ना, तो दिस वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज द विंटर सोल्स्टिस, पर वो नहीं कह रहे हैं, बिकॉज क्योंकि ये क्या है, ये यहाँ के लिए क्या है, यहाँ के लिए तो ये हमारे लिए तो ये विंटर समर ही है। नेक्स्ट, दे आर अदर टू टू पोजिशन जहाँ पर क्या होता है, इक्वल डे और इक्वल नाइट होता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। वो होता है 21 March और 23 September, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स आर दीज 21 June एंड 22 June। ठीक है ना, सोल्स्टिस के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। पहले भी आप बताइए, अभी तो वो आप जानो नहीं, आपको बताना है अभी कि इफ़ यू हैव एनीथिंग जो आपको समझ में नहीं आया उसको बता दो मुझे, सो दैट वी कैन गो थ्रू इट। एनीवन हैज एनी डाउट, प्लीज बता दो, एनीवन हैज एनी डाउट, किसी कोई डाउट है, एनीवन? अच्छा, मतलब एक मिनट, मैं कॉम्प्लिकेटेड, एक मिनट, मतलब फास्ट है कि कॉम्प्लिकेटेड है? देखो पहली चीज़ तो कि फास्ट तो मैं समझ सकता हूँ, दूसरा कॉम्प्लिकेटेड का क्या है सर कि टॉपिक तो यही सेम ही है। अब ऑब्वियसली आई एम ट्राइंग टू मेक इट मोर मेलो डाउन, मैं उसको कर रहा हूँ। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट, जैसे फॉर एग्जांपल आज हमने क्लास किया, इफ़ यू हैव एनी डाउट इन द क्लास और कुछ समझ में नहीं आया, सो डेफिनेटली वी कैन रिकॉल इट। ठीक है, डेफिनेटली वी कैन रिकॉल इट, उसको हम लोग समझ सकते हैं। और रही बात स्पीड की, ठीक है, फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास व्हाट आई विल डू, आई विल ट्राई टू रिड्यूस माई स्पीड, थोड़ा सा स्पीड भी कम करेंगे। जैसे आज भी इवन स्पीड ठीक थी, बट ज़्यादा टॉपिक नहीं हो पाए, तो थोड़ा सा तो स्पीड रखना ही पड़ेगा, बट ठीक है, आई विल ट्राई टू मैनेज विद द पेस। बाकी रही बात कॉन्सेप्ट्स की जो आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं, सो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देयर तो हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। जैसे अब मैं क्या करता हूँ इन माई क्लासेस, व्हाट आई डू,
आई ट्राई टू एलोकेट लास्ट टाइम, यानी जैसे जब खत्म हो गया, दो